हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हम लोग बात करेंगे। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। So all those candidates who are joining the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, Amity University, Sarda, LPU. And I have been qualified NET and GRF numerous number of times, but in the last few years, I have been qualified 4 times NET and GRF in Commerce and Management. I have done MBA, I have done Masters in Economics, and I have done Masters in Commerce also. So today's topic is all about the distribution channel. So what is all about the distribution channel? There is a slightly difference between the distribution channel and the marketing channel. Otherwise दोनों सेम ही है। ठीक है। आज के टाइम में हमने आपको स्टार्टिंग में तो मार्केटिंग पढ़ाई थी, तब बताया था कि today's scenario distribution channel plays a very vital role. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में there is a no competition with the product price and no competition with the product quality, product quality, product design. Right now there is a competition between supply chain management. Supply chain management क्या होता है कि supply chain distribution channel is a part of supply chain management. क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में जो भी कंपनी मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रही है, दे आर रनिंग सक्सेसफुली द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस पे एक कंपनी दूसरे से कंपीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. बिकॉज यू विल टॉक अबाउट द डेल की बात करिए, अमेजॉन का बात करिए, वॉलमार्ट का बात करिए, दे हैव टेकन द
competitive advantage over on their competitor just because of the strong supply chain management. क्यों? क्योंकि देखिए ना, आज के टाइम में हम लोगों को पता है कि वी हैव ए न्यूमरस नंबर ऑफ द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दुनिया के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए कई सारे अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है, अगर मार्केट में कस्टमर्स आर विजिटिंग द रिटेल स्टोर और उसको कहीं ना कहीं मार्केट में और उसको कोई पर्टिकुलर शॉप पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, स्टॉक आउट जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टॉक आउट की प्रॉब्लम अगर उसको फेस करना पड़ रहा है, तो व्हाट विल हैपन? Customer is visiting the store and customer is not able to get the desired product, then what will happen? क्या होगा बच्चा? Customer will switch over the other product. तो कहीं ना कहीं अगर if there is a certain disturbance in a supply chain management, or there is certain disturbance in a distribution channel or marketing channel, it might lead to the market failure in the long run. तो channel of distribution के क्या होता है कि supplying the goods or delivering the goods from one place to the other place. The channel of distribution is the path through which product move from the place of production to the place of ultimate consumption. It is connecting link between the producer and the consumer to sell the product. It creates the utility of time, place and possession while bridging the gap between the point of production and point of the consumption. So starting from the supplier, then manufacturer, then wholesaler, then distributor, then retailer, then customer. तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, क्योंकि कहीं कोई भी बच्चा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वॉट एवर यू आर मैन्युफैक्चर्ड टू द फाइनल कस्टमर, देयर इज अ नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ अल्टीमेट कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक की फाइनल प्रोडक्ट पहुंचाना, दैट इज द वर्क, दैट इज द टास्क विच इज गिवन बाय द मार्केटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ गया ना? कोई डाउट? तो आज के टाइम में देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. We have seen numerous number of the examples in the past also. And as of now, we have been numerous number of the examples where we have seen company and the product has been failed due to the lacking in a distribution channel. Then what actually we have to do? We have to improve our distribution channel. We have to improve the supply chain management so we can take the competitive advantage over on your competitor. Got it? So we will talk about what are the functions of distribution channel. अगर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्या क्या काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? सॉर्टिंग. द मिडिलमैन कलेक्ट गुड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. दीज गुड्स आर डिफरेंट इन क्वालिटी, साइज, नेचर, कलर एटसेट्रा. तो इंटरमीडिएट सॉर्ट दिस foods into homogeneous groups on the basis of the size, quality, natures. These goods है यहाँ पे. ओके, so what actually we do? तो सॉर्टिंग करना मतलब प्रोडक्ट को सॉर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. सो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सॉर्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? वी हैव बीन सपोज दैट HUL की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. हम लोग को पता है कि बहुत सारे टाइप का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो मैन्युफैक्चरर करता है. तो हम लोग उसको क्या करना है? ओवरऑल प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करना है? सॉर्टिंग करना है. ठीक है. Then accumulation. This function involve accumulation of goods into larger homogeneous stock which maintain the continuous flow of supply. After that, once you will be sort out the sorting करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? This function involve accumulation of the goods into larger homogeneous stock which maintain the continuous flow of supply. Third is the allocation. Allocation involve breaking the homogeneous stock into smaller marketable lots. तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग सॉर्टिंग कर लिया,
तो जो भी होमोजीनियस स्टॉक होगा, जिसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी प्रोडक्ट्स की, उसको हम लोग विल ट्राई टू एलोकेट दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इसमें करेंगे। स्मॉल छोटे छोटे मार्केटेबल लॉट्स में हम लोग उसको अलग अलग कर लेंगे। फिर असॉर्टिंग में क्या होगा, मिडिलमैन प्रोक्योर द वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज and deliver them in a combination desired by the customers. A retailer collect a variety of consumer goods and deliver them to the household. So what will happen now assorting? The middleman will try to procure variety of the goods from the different sources, different manufacturers, and then will try to deliver those combinations to the desired by the customers. And अगर हम लोग रिटेलर की बात करें, रिटेलर collect a variety of consumer goods and deliver them to the final customer or final consumer. क्लियर? आगे बात करेंगे प्रोडक्ट प्रमोशंस। The middleman advertise a product kept with them. They also do certain sales promotion activities like demonstrations, special display to increase the sale of product. यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट प्रमोशंस की, देखिए मारुति भी अपना कहीं ना कहीं टेलीविजन पे डिफरेंट मीडियम्स में कहीं ना कहीं अपना एडवर्टीजमेंट करता है, बट कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो जिसके पास जो शोरूम होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सिटी में अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए प्रमोशन करता है। तो जितने भी मिडिल मैन होते हैं दे हैव टू डू सर्टेन प्रमोशंस। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए अपने एरिया में अपनी सिटी में, तो कहीं ना कहीं दे हैव टू डू सर्टेन प्रमोशंस। तो मिडिल ऐसा नहीं केवल मैन्युफैक्चरर आर डूइंग सर्टेन एडवर्टीजमेंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, जितने भी मिडिल मैन हैं उनको भी कहीं ना कहीं दे हैव टू बी पार्टिसिपेट इन एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि मारुति अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है कार का, उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं जो रिटेलर्स होते हैं जो कार सेल कर रहे हैं कि आप, क्योंकि एक शहर में मान ली 10 रिटेलर हैं, 10 के 10 रिटेलर अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं मारुति को तो कोई कहीं से भी कार की मारुति को बेनिफिट होगा, बट थिंक अबाउट दोज रिटेलर जिसने कहीं ना कहीं एक रिटेलरशिप लेके रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखी हुई है, उसको बेनिफिट तो तभी होगा जब उसके यहाँ से कोई कार सेल होगी। तो दैट इज द ओनली रीजन दे एक मिडिल मैन भी कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रहा है कार का, अपने स्टोर का। नेगोशिएशंस, they negotiate and try to reach agreement on price and other terms of sale. They have to be negotiate for product quality also, they have to be negotiate for the product price also. Risk taking, they wear the risk of changes in the demand, damage in a transit, theft, spoilage, destruction. Clear? Any doubt है? Functions of channels में कोई doubt हो बताइए, distribution channels में। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। नेगोशिएशन होता है गरिमा, नेगोशिएट करना बिटवीन द टू पार्टीज। मतलब नेगोशिएशन आप क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं कि हमको इतना क्वांटिटी चाहिए। मान ली मारुति ने 100 कार मैन्युफैक्चर करी और एक शहर में या एक शहर के लिए 100 कार मैन्युफैक्चर करी और एक शहर में 20 मैन्युफैक्चरर है, 20 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको कहना कि नेगोशिएट करना पड़ेगा किससे? अपने मैन्युफैक्चरर से। तो नेगोशिएशन हम लोग क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए कर सकते हैं, प्राइस के लिए कर सकते हैं। नेगोशिएशन मतलब नेगोशिएट कर रहे हैं आप कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर ने कोई मान लीजिए कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया,
एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट किसको सेल करना है? रिटेलर को। रिटेलर को कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक जो कस्टमर है वो खरीदेगा नहीं, तो रिटेलर क्या करता है? अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से बोलता है कि इसकी लागत, इसका प्राइस एमआरपी 100 रुपए नहीं होना चाहिए, बिकॉज 100 रुपए में कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं। तो नेगोशिएशन इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन फॉर क्वांटिटी, फॉर क्वालिटी, फॉर प्राइस, सो फॉर एनीथिंग वी कैन डू सर्टेन नेगोशिएशन। फर्दर एनी डाउट, anyone is having a doubt, please do tell me. आगे बात करेंगे लेबल्स ऑफ चैनल्स, इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया इससे। आगे बात करेंगे लेबल्स ऑफ चैनल्स की, कितने चैनल्स के लेबल्स होते हैं। वी हैव अ 0 लेबल, वी हैव अ 1 लेबल, वी हैव अ 2 लेबल, वी हैव अ 3 लेबल्स। तो कई सारे टाइप के चैनल्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, उनकी बात करेंगे बच्चा हम लोग। तो टाइप्स ऑफ चैनल्स में distribution channel connect the producer and the consumers. Several intermediaries functions in between them. The number of intermediaries determine the length of the channel. It is called channel labels or types of channels. तो इसको हम लोग, जो लेंथ की मतलब है 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, इसका मतलब क्या होता है अभी आगे आपको समझाएंगे। देखिए इसका मतलब होता है अगर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई भी बीच में इंटरमीडिएट्स नहीं, उसको बोलते हैं 0 लेवल। जो यूरोका फॉर्म ने करा, जिसको हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर को 0 लेवल बोला जाता है। अगर 1 लेवल की बात करेंगे, अगर भाई 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल का मतलब है जितने लोग बीच में इंटरमीडिएट्स होंगे, मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर या कस्टमर के बीच में जितने इंटरमीडिएट्स होंगे, उसी को बीच में बोलेंगे लेवल। तो देखिए मैन्युफैक्चरर देन रिटेलर देन कंज्यूमर, एक बीच में कौन है? एक लोग, इसको 1 लेवल। होलसेलर रिटेलर 2 हो गए, होलसेलर जॉबर या डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं आपको इसको, या एजेंसी, इसको 3 लेवल। तो मतलब ये डिपेंड करता, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज टू सर्विसेज। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हम लोग, भाई अगर पेरिसेबल आइटम्स है उसमें मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कौन होगा? बीच कौन होगा? डायरेक्टली कंज्यूमर, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत, क्योंकि पेरिसेबल आइटम्स को बहुत दिन तक की कैरी नहीं कर सकते, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर पहुंच रहा है या कस्टमर पहुंच रहा है। क्लियर? तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल का मतलब है जितने लोग बीच में इंटरमीडिएट्स हैं, जितने लोग बीच में मिडिल मैन होंगे, उसी के हिसाब से उसको हम लोग बोलेंगे लेबल्स, उसके बोले जाएंगे। समझ गए? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल। सर पहले बच्चों बात करेंगे डायरेक्ट चैनल्स और 0 लेवल और डायरेक्ट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडिएट्स। ऐसे चैनल जिसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स आर डायरेक्टली अवेलेबल दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, दोज चैनल्स आर कॉल्ड डायरेक्ट चैनल्स और 0 लेवल और डायरेक्ट मार्केटिंग। एग्जाम्पल मेल ऑर्डर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट सेलिंग में डायरेक्टली होता है। सेलिंग थ्रू ओन सेल्स फोर्स और ओन रिटेल आउटलेट्स। मैकडॉनल्ड्स की बात करिए, यूरोका फोर्ब्स की बात करिए, ठीक है। तो यूरेका फोर्ब्स फॉर द वेरी फर्स्ट कंपनी, भारत में पहली कंपनी थी जिसने कहीं ना कहीं 0 लेवल की मार्केटिंग चैनल स्टार्ट किया था, या जिसने डायरेक्ट मार्केटिंग स्टार्ट किया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी पहली कंपनी है which have started the direct marketing in India, that is called यूरेका फोर्ब्स। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट चैनल्स। इनडायरेक्ट चैनल्स में
देखो जीरो लेवल आ गए डायरेक्ट चैनल्स में, उसके अलावा सभी आ गए इनडायरेक्ट चैनल्स में। इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स बाय एम्प्लॉइंग वन और मोर इंटरमीडिएट्स फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। तो इनडायरेक्ट चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, उसको हम लोग इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं। भले 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल क्या हुआ? इन दिस टाइप द इंटरमीडिएट्स इज द रिटेलर फॉर्म डायरेक्टली सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। मारुति का हमने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मारुति की बात करिए, हुंडई की बात करिए, तो मारुति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डायरेक्टली रिटेलर को दे रहा है, बीच में बहुत सारे लोग उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं होते। तो 1 लेवल क्या हुआ? जिसमें बीच कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में केवल एक ही इंटरमीडिएट है, मिडिल मैन है, उसको 1 लेवल बोला जाएगा। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जीरो लेवल 1 लेवल में कोई डाउट बताइए। कोई डाउट है तो बताइए। गरिमा, डू यू हैव एनी डाउट? आगे बोलेंगे 2 लेवल चैनल्स। अंडर दिस चैनल मैन्युफैक्चरर सेल्स टू वन और मोर रिटेलर who in turn sells to the ultimate consumer. This is the most commonly adopted distribution network for most consumer goods like soaps, oils. जितने भी FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कॉमनली वी डू यूज द 2 लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर। तो बीच में 2 इंटरमीडिएट्स हो गए, इसको बोलेंगे 2 लेवल चैनल्स। This is the longest channel of distribution in this path. One more middleman is added, so there are 3 intermediaries involved: agent, wholesaler, retailers. Manufacturers use their own selling agent or brokers who connect them with wholesalers and then the retailers. इसमें कौन हो गया? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, देन कस्टमर। तो 3 लेवल में there are 3 intermediaries between the customer and manufacturer. That is called 3 level marketing channel. Now it is essential to make right choice of channels of distribution. The choice of appropriate channel depend on the various factors. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से whenever we are planning to choose certain marketing channel, distribution channel, so what are the factors we have to be remember? What are the factors we have to be careful while choosing certain distribution channel? That is called product related factors, market related factors, company related factors, competitive factors, environmental factors. ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स which are necessary to be remember, necessary to be concerned about those factors while choosing certain distribution channel. First is the product related factor. आपको प्रोडक्ट के बारे में देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट पैरिसेबल आइटम्स है, प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है। The industrial products are usually technical and expensive product purchased by the very few customer. It is requires shortest channel. It might have direct channel also. Consumer products are standardized product which can be easily sold through the intermediaries.
प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे BMW हो गया, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने अपने क्या करा, मैन्युफैक्चरर ने अपना रिटेल आउटलेट खोल दिया और डायरेक्टली कार सेल कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट ऐड करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी, वैसे बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो भाई अगर पेरिसेबल आइटम्स की बात करेंगे, अगर दूध की बात करिए, आप वेजिटेबल्स की बात करिए, मीट का बात करिए, तो जहां पर उसमें भी अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट ऐड ऑन कर दिए तो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक ही पहुंचते पहुंचते स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव टू बी थिंक कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया पेरिसेबल वर्सेस नॉन पेरिसेबल आइटम्स। पेरिसेबल प्रोडक्ट लाइक योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट आर वेस्ट सोल्ड थ्रू द शॉर्ट चैनल्स। मतलब शॉर्ट चैनल्स मतलब प्रोडक्ट लाइफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत शॉर्ट होंगे, मतलब बीच में इंटरमीडिएट मैक्सिमम एक होगा। व्हाइल नॉन पेरिसेबल प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, टूथपेस्ट रिक्वायर्स लॉन्गर चैनल्स टू रीच वाइड स्प्रेड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिसकी नॉन पेरिसेबल आइटम जिसकी कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट 1 साल है, 2 साल है, और हम उसमें चाहते हैं कि मेरी मार्केट में कहीं ना कहीं सेल बढ़े, ठीक है, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं लंबे या 2-3 बीच में इंटरमीडिएट्स भी ऐड कर सकते हैं। यूनिट वैल्यूज, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यूज कितनी है। व्हेन यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट इज हाई, डायरेक्ट चैनल इज इफेक्टिव, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, कार, हमने आपको बताया। जब प्रोडक्ट की यूनिट वैल्यू पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड लेस कॉस्टली प्रोडक्ट लाइक कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट, सोप्स आर सोल्ड थ्रू द लार्जर चैनल्स। जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ज्यादा एड ऑन कर सकते हैं। पहला था प्रोडक्ट रिलेटेड, दूसरा हो गया मार्केट रिलेटेड, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंगली। The following factors relating to the market are particularly significant in the choice of the channels of distribution. First is the nature of the market. In a consumer market, longer channels are used, wherein the industrial market, shorter channels are preferred. ठीक है, तो कंज्यूमर मार्केट होगी, वहां पर हम लोग लॉन्गर चैनल्स को प्रेफर करेंगे, जहां पर इंडस्ट्री मतलब B2C में, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग लॉन्गर चैनल्स यूज करेंगे। बस B2B की बात करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होगा, इंडस्ट्रियल मार्केट होगी, वहां पर शॉर्टर चैनल, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर देन डायरेक्टली इन द कंपनी। ठीक है, साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज कितना है, मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, छोटी मार्केट है। इन केस द नंबर ऑफ बायर्स इज स्मॉल, शॉर्टर चैनल आर यूज, जहां पर बहुत कम कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में, शॉर्टर चैनल यूज करिए। बट इनडायरेक्ट चैनल्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसी मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, वी कैन यूज द इनडायरेक्ट चैनल्स। Then geographical situations, if the buyers are concentrated in a limited area, direct selling can be used. But widely scattered customers require the use of middlemen. Geographical situation का मतलब है कि अगर मान लीजिए पूरे इंडिया में कस्टमर फैला हुआ है, the buyers are concentrated in a limited area, तो मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक यूपी में है, लखनऊ में है, दिल्ली में, कोई स्पेसिफिक सिटी में है, या स्पेसिफिक एरिया में कोई कस्टमर है, देन व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट चैनल्स कैन बी यूज। अगर कस्टमर स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडिया, देन व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी विल रिक्वायर सर्टेन मिडिलमैन। अगर वही बात करेंगे कि आपको लखनऊ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई कस्टमर्स आर अवेलेबल है, कस्टमर्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडिया, देन व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, वी हैव टू बी यूज सर्टेन मिडिलमैन। साइज ऑफ द ऑर्डर कितना है, एक कोई पर यूनिट, 1 यूनिट ऑर्डर कर रहा है, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इफ द साइज ऑफ द ऑर्डर इज स्मॉल, इन द केस ऑफ मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स में बी यूज। बट इफ साइज ऑफ ऑर्डर इज लार्ज, डायरेक्ट चैनल्स में भी यूज। भैया कि आपको दो साबुन लेने जाना है, 10 साबुन लेने जाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसमें बीच में इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं। आपको अगर 1000 साबुन उठाना है, 1000 प्रोडक्ट लेना है, आपको 1000 प्रोडक्ट लेना है, 2000 प्रोडक्ट लेना है, बल्क में परचेसिंग करना है, वी ऑलवेज ट्राई टू टारगेट द कंपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको प्राइसिंग अच्छा मिल जाएगा, सस्ते दामों में मिल जाएगा हमको। क्योंकि अगर मिडिल मैन से लेंगे वो अपनी कमीशन ऐड करेगा, बट डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर से लेंगे, बल्क मैन्युफैक्चर लेकिन देगा तभी जब उसको बल्क में लोगे। थर्ड आ गया कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कौन सा, कंपनी रिलेटेड फैक्टर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दे आर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है,
company having the large amount of fund can create his own channel of distribution, but financially being companies will have to depend upon the middleman. जो बहुत मजबूत कंपनियां हैं, जो बहुत पैसा है, जिनके पास दे हैव सर्टेन फाइनेंशियल बैकबोन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकबोन है, तो उसमें क्या करेंगे, आप अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. बट यू हैव सम सर्टेन लिमिटेड फंड्स, you have, in what actually you have to do, you require certain middleman. डिजायर फॉर कंट्रोल, आप कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं. कंपनीज विच वांट ए टाइट कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेफर डायरेक्ट चैनल्स, अदरवाइज इनडायरेक्ट चैनल्स में भी यूज. क्योंकि डायरेक्ट चैनल्स पे आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, बट कहीं ना कहीं जहां पर मिडिलमैन को यूज कर लेंगे आपका कंट्रोल खत्म हो जाए, कम हो जाएगा. मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म हैज सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे प्रिफर डायरेक्ट सेलिंग. अगर आपको ऑल दोस पर्सन्स हु आर इन द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, if they are having certain sufficient knowledge about the market, sufficient knowledge about the customer, experiencing in a distribution, then what actually we do, we can use, we can prefer the direct selling. On the other hand, what actually we do, whose management has not sufficient knowledge, have to be depend on the middleman. Fourth, the competitive factor. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. Anyone is having any doubt, please do tell me. Anuj, Garima, Priyanka, Roshan, anyone is having any doubt, please do tell me. जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो बच्चा प्लीज बताइए. Fourth, the competitive factor. The choice of channel is also affected by the channel selected by the competitors in the same industry. The competitors have a selected particular channels. The other firm may also like to select the similar channel. Sometimes we may avoid the channels used by the competitors. तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स भी देखते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है. बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए होगा. अब सपोज दैट आपके पास एक मोनोपोली है मार्केट में, यू हैव क्रिएटेड द मोनोपोली द मार्केट, तो आप कोई भी चैनल को यूज करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर पर कोई ऑप्शन नहीं है. जब भी प्रोडक्ट मार्केट में आप सप्लाई करोगे तभी वो लोग खरीद पाएंगे. तो चॉइस ऑफ चैनल इज ऑल्सो वेरी अफेक्टेड बाय द चैनल सिलेक्टेड बाय द कस्टमर्स. भाई पैप्सिको और कोकोला की बात करेंगे, बहुत स्टिफ कंपटीशन है दोनों के बीच में. तो जैसा कोकोला अगर सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो करेगा, इन सेम मैनर पैप्सिको हैज टू फॉलो द सेम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. So if the competitors have selected a particular channel, the other firm may also like to select the similar channel. Sometimes we may avoid channels used by the competitors. Next, the environmental factors. Environmental factors include factors such as economic conditions and legal constraints. जैसे in a depressed economy, marketers use shorter channels to distribute their goods. तो इन्वायरमेंटल में हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, देश की क्या है, लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या है. तो इन डिप्रेस इकोनॉमी, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत चल रही है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो इन सच ए कंडीशन व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू यूज द शॉर्टर चैनल्स. क्योंकि अगर मार्केट में पहले से दिक्कत चल रही है,
अगर उस दौरान अगर लॉन्गर सप्लाई चेन यूज करेंगे, लॉन्गर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लीगल कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस में या इकोनॉमिक कंडीशंस अगर देश अगर कंट्री की डिपेंड कैसी है, इन सब चीजों को दिमाग में रखकर हम लोग क्या करेंगे, चैनल्स को चूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ एनीवन इज हैविंग अ डाउट प्लीज डू टेल मी। चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को डाउट नहीं है, विवेक, अंजलि, शिखा, प्रदीप, ओके, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट यू बाय टुमारो प्रॉब्ली बाय द सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।